राइट बैक, हम्म, हम्म, ग्रुप राइट बैक, इनके बारे में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था. सो व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट इज यूज ऑफ दीज थ्री, इन तीनों पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाई वी नीड टू यूज इट दीज हाँ, पॉइंट्स. वो पासवर्ड हैशटैग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग को ऑन प्रीमाइसिस से माइक्रोसॉफ्ट 360 पे लॉगिन सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उसको साथ पासवर्ड भी सिंक्रोनाइज करने के लिए पासवर्ड हैशटैग का यूज होता है. हम्म. एंड पासवर्ड राइट बैक का मतलब मीन्स हमको माइक्रोसॉफ्ट 365 से ऑन प्रीमाइसिस में पासवर्ड सिंक्रोनाइज करवाना होता है, तो उसके लिए पासवर्ड राइट बैक का यूज होता है. लाइक वाइस वर्सा, वी कैन से दैट वाइस वर्सा हम इसका इस्तेमाल या करते हैं. पासवर्ड राइट बैक और पासवर्ड हैश बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ऑन प्रीमाइसेस एडी यूजर्स को एज्यूर एडी के साथ जोड़ने का काम करता है, राइट. पर या एज या ऑन प्रीमाइसेस एडी से जो यूजर्स पासवर्ड है उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करता है. और राइट बैक जो है, अगर आप पोर्टल से कोई चीजें चेंज करोगे, अगर आप पोर्टल से उस यूजर का पासवर्ड रीसेट करोगे, तो ऑन प्रोमाइसेस पे उस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए राइट बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड पासवर्ड राइट बैक सिंक्रोनाइजेशन, राइट. Group Write Back, latest feature introduced by Microsoft. So basically, Azure AD ने एक नया options launch किया, which is considered as a group write back. और group write back की responsibility क्या होती है? If you want to synchronize the group from Azure portal, yes, from Microsoft Entra ID to on-premises, then group write back come into the picture. Chalo, let's talk about the another options that we have and try to understand about the concept of the remaining options that we have. The remaining option related to the password write back, right? So in this case, we are able to find multiple options are available that we need to keep in our mind. These options are like, let's talk about custom user synchronization. So what do you think about the custom user synchronization? Any idea about the custom user synchronization? कस्टमर को सिंक्रोनाइज करने का अब 365 टू ऑन प्रीमाइसिस में. No, no, custom user synchronization. नो आइडिया. Because what happens sometime, like जब आप on premises पे बहुत सारे users हैं आपके पास, right? N number of users you created on premises, and from n number of users you don't want to synchronize all the users. आपने decide किया है कि कुछ selected user ही हम synchronize करना चाहते हैं, हम सभी users को synchronization नहीं देना चाहते हैं. Let's take an example, like in the on premises we created 10 different users, or you wanted to synchronize only 5 different users you want to synchronize with Microsoft 365 portal. So that time the custom user synchronization come into the picture, right? ओके, या अंडरस्टूड. So I think we created our AD in our 2019 server 2019 में हमने तैयार किया था, जिसमें हमने AD को सिंक्रोनाइज करके देखा था. रिमेम्बर विंडोज सर्वर 2019, we installed the या active active domain services, and we downloaded one tool. The tool name is Azure AD Connect. So by using the Azure AD Connect, we successfully synchronized all the users which are available on on-premises AD. Oh, really nice, they were. Yeah, they're really nice. Yeah.
Okay, the domain that we created on on-premises with name of maybe cloud.com, right? The Active Directory domain services that we established on on-premises, which is uh, cloud.com. And in the cloud.com, let me check how many users are available. So open our Active Directory user on computers. Data user available, telnet available, and demo user also available. Total number of users, three different users are available in our Active Directory. And let me open our Microsoft 365 portal and identify how many users we successfully synchronized. Open our 365 portal, and 365 we just need to open Microsoft Intra ID. So Intra Admin Center. Let me click on the users panel. This is the panel of Intra ID. Select all user and it will provide you the information about the number of users that we created. So यहाँ पे हमारा demo user है and data user है और telnet, वो तीनों users हमारे में सक्सेसफुली Microsoft 365 पोर्टल या Microsoft Intra ID में सिंक्रोनाइज हो चुके हैं. ऑल राइट. So how we can identify that the users use synchronize from on-premises AD to Azure AD? हम ये कैसे identify करेंगे कि जो users हैं ये on-premises से synchronize हो रहे हैं? Do we have any option? Ashish, can you hear me? Yes, sir. With the specific with the domain name. No. So with the users that we synchronize, which are all are associated with on Microsoft.com. यहाँ पे हमने तीन Yeah. users create किए थे और तीनों users जो हैं on Microsoft.com से synchronize हैं. Yeah, on Microsoft.com से synchronize है. So it means that जो डोमेन आपने परचेज किया और क्रिएट किया है ऑन प्रोमाइसेस से, वो डोमेन आपका सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है. हाँ, वो domain name अलग है दोनों इसीलिए. राइट, बिकॉज द डोमेन कंट्रोलर नेम इज टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. सो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि लाइक हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कितने यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हुए हैं और कौन से यूजर हमारे एजू पोर्टल से हैं. Cloud.net से वो Microsoft 365 डोमेन से है किया हुआ. जितने भी Microsoft Teach Me Cloud.net है वो वाले. एनी अदर मेथड? No idea, sir. Okay, so basically, this is Microsoft Intra Admin Portal, or in case of Microsoft Intra ID or Intra Admin Portal, we are able to find एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज. सो ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइज इनेबल के केस में जितने यूजर्स में नो लिखा हुआ है, राइट, जितने यूजर्स में नो लिखा है, इट मींस दैट दीज यूजर्स आर क्रिएटेड ऑन पोर्टल. उनको आपने डायरेक्टली पोर्टल से क्रिएट कर रखा है. और जितने यूजर्स के सामने यस दिखाई पड़ रहा है, वो सारे के सारे यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो सारे के सारे यूजर्स आपके आ रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस से. तो आप On देखिए premises से server से. कितने कितने यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस से आ रहे हैं और कितने यूजर क्लाउड से आ रहे हैं. 4 on premises से आ रहे हैं 4. हम्म. 1 2 and the rest of it from the rest of no वाले है वो Microsoft 365 से है. और yes वाले on premises से है. ओके. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे तीन यूजर्स जो है ऑन प्रोमाइसेस पे आ रहे हैं और जो बाकी के यूजर हैं वो हमारे क्लाउड से क्रिएट किए गए हैं. 4 है yes वाले 4 है सर. एक डेमो नहीं नहीं, वाला है एक 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 आपका कंप्यूटर नेम है, एक और आपका डोमेन नेम है. कंप्यूटर है. ओके ओके. डिफॉल्ट वाला है. राइट.
ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे टेलनेट के सामने यस दिखाई पड़ रहा है, टाटा के सामने यस दिखाई पड़ रहा है, और जीसीपी के सामने यस दिखाई पड़ रहा है। बाकी के जितने भी यूजर्स हैं वो आपके क्या है, नो दिखाई पड़ रहा है। नो इन द सेंस कि वो यूजर्स आपने खुद से क्रिएट किया है। जीसीपी डेमो के सामने ही है, जीसीपी तो वो है अपना। ठीक है। सो ये आपके यूजर्स जो हैं क्लाउड से तैयार किया है, इस वजह से नो दिखाई पड़ रहा है। जो यूजर्स आपने ऑन प्रेमाइसेस से क्रिएट किए हैं उसके सामने यस दिखाई पड़ रहा है। सो मीनिंग ऑफ कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, जैसे आपने यहाँ पे डेमो, टाटा और टेलनेट, ये तीन यूजर आपने सिंक्रोनाइज कर रखे हैं, राइट। अब क्लाइंट कहता है कि आई डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि clients don't want to synchronize all the users from on premises AD। क्लाइंट सारे यूजर्स ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहता, कुछ यूजर सेलेक्टेड यूजर सिंक्रोनाइज करना चाहता है, और कुछ यूजर्स को वो वहीं ऑन प्रोमाइसेस पे छोड़ देना चाहता है। सो इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग टू सिंक्रोनाइज ओनली टाटा एंड टेलनेट, हम डेमो यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क अगर आपको कोई इंडिविजुअल यूजर डिसिंक्रोनाइज करना है या उसको सिंक्रोनाइज करके पोर्टल पे नहीं ले जाना है, तो उस केस में सिंपल सा फंडा हम यूज करेंगे। अपने ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे, जो डोमेन है उस डोमेन मशीन को लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे डेमो यूजर ओयू को एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करोगे आप क्लाउड में जाके, न्यू पे जाके ओयू पे क्लिक करोगे और कोई सा भी नाम दे दो आप। टेस्ट ओयू के नाम से हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट ओयू के नाम से दे दिया और डेमो यूजर को इस टेस्ट ओयू में मूव करा दिया। अब आपका जो डेमो ओयू है वो हमने टेस्ट ओयू का मेंबर बना दिया। नाउ बैक टू द डेस्कटॉप ऑफ आवर सर्वर कंप्यूटर, ये जो Azure AD कनेक्ट का टूल है इसको आप ओपन कराइए और मैनुअली इसको सिंक कराइए। ओपन द टूल, क्लिक कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद इट विल आस्क यू मल्टीपल ऑप्शंस, इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन। सो आपने सिंपल कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जीसीपी हमारा ग्लोबल अकाउंट था, रिमेंबर जीसीपी यूजर को हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना रखा था। सो चलिए उसका राइट्स देते हैं, उसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अप्रूवल देते हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रेमाइसेस एडी टू एज्योर एडी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ग्लोबल का यूजर आईडी पासवर्ड मैंडेटरी है। once you approve you need to click next, और this is the panel। यहाँ पे देखो ध्यान से कितने सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, सिंक्रोनाइज ऑल डोमेन एंड ओयूज, सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डोमेन एंड ओयू। अभी जो बाय डिफॉल्ट कनेक्शन रहता है, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है वो क्या है, वो है सिंक्रोनाइज ऑल ऑल डोमेन। डोमेन एंड ओयू। मतलब जितने भी यूजर या जितने भी ओयू हैं उस ओयू के अंदर जो यूजर्स अवेलेबल हैं उन सभी का सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है। ऑलराइट। सो सिंक्रोनाइज यस। ऑल डोमेन्स एंड ओयू, और दूसरा है सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डोमेन एंड ओयू। हम यहाँ पे कस्टम यूजर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली वी ऑलवेज प्रोसीड विद द सेकेंड ऑप्शन। we need to proceed with the second option, right? Because you need to synchronize with the limited access, you want to synchronize with limited user। एक्सप्लोर द डोमेन कंट्रोलर, और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक डोमेन बनाया था, ओयू बनाया था विद नेम ऑफ टेस्ट ओयू। यू आर एबल टू फाइंड द लिस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यू आर एबल टू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट वी जस्ट क्रिएटेड। you have to uncheck the location, uncheck the option of our test OU, all right। यस। uncheck the जिसको भी हमको सिंक्रोनाइज नहीं करना है। जितने भी यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं किया, राइट, जिसको भी uh, Means we have to just check uncheck so that will be not synchronized with the uh, cloud then. राइट। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी यूजर्स को Okay. ऑथराइज करना है, कौन सी यूजर को सिंक्रोनाइज करना है, नहीं करना है, वो आप डिसाइड करोगे और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो अहेड। ऑलराइट। Mhm.
सो हमने यहाँ पे टेस्ट ओयू को अनचेक कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स विच आर अवेलेबल इन टेस्ट ओयू. इस टेस्ट ओयू के अंदर जितने भी यूजर्स हैं ना, उनको हम सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू अनचेक द टेस्ट ओयू. क्लिक नेक्स्ट एंड नो नीड टू डू एनीथिंग. यहाँ पे अभी कुछ ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पासवर्ड हैज पासवर्ड राइट बैक के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है. अब अगर इसको अनचेक कर, इसको चेक मार्क कर दोगे तो आप अपने एटी यूजर का पासवर्ड दोनों लोकेशन से रीसेट कर सकते हो, राइट? जो यूजर है उसका पासवर्ड आप क्लाउड से भी चेंज कर पाओगे और ऑन प्रोमाइसेस से भी आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग आई थिंक. हमने वो पासवर्ड है सिंक्रोनाइजेशन और पासवर्ड राइट बैक सिंक्रोनाइजेशन किया था, उसका प्रैक्टिकल करना है तो भी वो भी इधर से ही होगा, है ना? हाँ, सारे ऑप्शंस आपको यहीं से मिल रहे हैं. अच्छा, से मीन्स हमको पासवर्ड दोनों में से दोनों का पासवर्ड भी सिंक्रोनाइज करवाना है तो इधर टिक करना पड़ेगा तो ही पासवर्ड सिंक्रोनाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. करेक्ट, करवाना होगा तो करेक्ट. नो प्रॉब्लम. So it's up to you. You can use both the options. आप दोनों से लोकेशन से आप इसको मैनेज कर सकते हो. ओके. सो इसका मेन यूज है ऐसा कि मीन्स दोनों दोनों पोर्टल पे जाएंगे तो दोनों का पासवर्ड सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा, उसका मेन रीजन नहीं है. No, sorry. Can you please repeat again? I wanted to clear it. मीन्स ये पासवर्ड है सिंक्रोनाइजेशन और पासवर्ड राइट बैक का यूजेस वो है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 और लाइक ऑन प्रीमाइसेस मींस ऑन सर्वर दोनों का पासवर्ड सेम होगा, मींस अलग नहीं होगा. इसका मेन रीजन इसका वो इसके लिए है पासवर्ड न- सिंक्रोनाइज नहीं, करने का. या पासवर्ड हैज जब आप ऑन प्रोमाइसेस से पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर का पासवर्ड क्लाउड पे जाएगा. अगर आप राइट बैक एक्टिवेट करते हो तो आप क्लाउड का पासवर्ड जब रीसेट करोगे, राइट, क्लाउड पे जब आप पासवर्ड रीसेट करोगे तो वही पासवर्ड आपका ऑन प्रोमाइसेस पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा. सिंपल. ओके, नाउ अंडरस्टूड. Chalo, I'm going to proceed because we are working on the custom user synchronization. So we just need to proceed and configure and installation in progress. And meanwhile, once it's complete, you will find जितने भी यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए थे, राइट, जितने भी यूजर्स हमने सिंक्रोनाइज किए थे उसमें से डेमो यूजर हमारा गायब होना चाहिए. Why it need to disappear? Because we have just uh, use the custom synchronization and we just create a OU and we just disappear from the Microsoft Azure, so that's why. Sorry. हमने उसको उसका सिंक्रोनाइज नहीं करवाना है इसीलिए वो उधर से Custom user synchronize करना है. डिसअपियर हो जाए. हाँ हाँ, we इसीलिए वो decided डिसअपियर we, होना we चाहिए. decided custom user synchronization, right? So in case of custom user synchronization, we don't want to synchronize all the users which are available. हमने प्लान किया कि नहीं, हम कुछ ही यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. सो जिन यूजर्स को सिंक्रोनाइज नहीं करना है आप उनको रखेंगे अपने खुद के ओयू में और उस ओयू को आप अनचेक कर देंगे जब भी आप उसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. सो दिस इज द एक्चुअल टास्क, राइट? आई थिंक all good. So we successfully Yeah, all proceeded. We successfully proceeded. यहाँ पे configuration complete हो चुका है. Back to the portal, and over back to the portal, we just need to refresh the page, and you should wait for a few more seconds, and we'll get the information. And I think the demo user disappear, right? The demo user disappear, yeah. disappear from our portal. So it means that custom user synchronization भी हमने यहाँ पे complete कर लिया. Any doubt about the custom user synchronization? No, sir. Cool. So let's proceed for the next another part, another important part. Custom user synchronization is the small task that you need to work, but you also need to work. You need to know about the alternative UPN suffix, not alternative, alternate UPN suffix. So any idea about the alternate UPN suffix? What you think about the alternate UPN suffix? Why it is important? Alternate UPN का मतलब क्या है? UPN क्या करता है? So can you please help me to understand about the concept of alternate UPN? No idea right now. That यूपीएन क्या होता है? चलो छोड़ो, यूपीएन क्या होता है? anything, one kind of the number.
they provide for the some migration. UPN is user principal name, Yeah, you told right? on the last class. यूजर Yeah. यूजर प्रिंसिपल नेम। सो यूजर प्रिंसिपल नेम क्या होता है? जो यूजर का नेम हो प्लस डोमेन का नाम हो, दोनों के Mhm. कॉम्बिनेशन को, राइट, यूजर नेम प्लस डोमेन नेम, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूपीएन नेम से जानते हैं, राइट? द कलेक्शन ऑफ यूजर User नेम एंड principal name. यूजर नेम एंड डोमेन नेम कंसीडर एज ए यूपीएन, करेक्ट? Oh, अब कस्टम या अल्टरनेट यूपीएन का मतलब ये होता है कि लाइक सम टाइम, बिकॉज यू नो दैट अगर हम ऑफिस 365 की बात करें तो ऑफिस 365 की जो सर्विसेज है वो अभी मतलब रिसेंटली 5 साल 6 साल या 7 साल से आई है, राइट? एंड डोमेन जो है वो काफी साल से 10 साल 15 साल से पहले से हम डोमेन स्टैब्लिश कर रखे हैं। उस टाइम पे ऐसे कोई मीन्स ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि आने वाले टाइम पे हमें क्लाउड पे ले जाना पड़ेगा, गॉट इट? आने वाले टाइम पे हमें क्लाउड पे mhm. मेलिंग सर्विसेज स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो उस केस में हमने यूजर कोई कोई भी डोमेन नेम डिसाइड करके क्रिएट कर दिया था, राइट? उस टाइम पे हमने कोई भी Mhm. एक्स वाई जी यूजर बना के क्रिएट कर दिया। बट nowadays we are trying to set up a hybrid environment। अभी हम क्या करने वाले हैं? हाइब्रिड सेटअप करने वाले हैं, हाइब्रिड इन्वायरमेंट स्टैब्लिश करने वाले हैं। सो इन केस ऑफ Mhm. हाइब्रिड इन्वायरमेंट which is which is really understand which is really important कि जो हाइब्रिड इन्वायरमेंट है हमारा, उस केस में जो हाइब्रिड इन्वायरमेंट है उस केस में हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन है और जो क्लाउड पे हमने डोमेन स्टैब्लिश कर रखा है, क्लाउड पे जो कस्टम डोमेन सेटअप कर रखा है, दोनों मैच करने चाहिए, Mhm. राइट? जो ऑन प्रोमाइसेस है और जो क्लाउड पे है, दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। मैच होना ज़्यादा चाहिए, डोमेन मैच होना चाहिए। डोमेन डोमेन नेम मैच होना चाहिए, अदरवाइज जब आप यूजर सिंक्रोनाइज करोगे तो आपके यूजर्स जो है ना, वो कहाँ पे मूव हो जाएंगे? वो यूजर्स आपके कहाँ पे मूव हो जाएंगे? ऑन प्रोमाइसेस यूजर है, Mhm. ठीक है? ऑन प्रोमाइसेस यूजर है और क्लाउड पे कुछ दूसरा है, ऑन प्रोमाइसेस और क्लाउड पे Mhm. कुछ दूसरा है। तो उस केस में आपका जो यूजर होगा सिंक्रोनाइज होगा और आपके Mhm. यूजर्स जो हैं वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से एसोसिएट हो जाएंगे, एंड वी डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज आवर यूजर दैट एसोसिएटेड विद ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। Mhm. हमें उसी डोमेन नेम से सिंक्रोनाइज करना है जो हमारा क्लाउड पे है। क्लाउड पे, ओके। वो पहले ऑन ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com से हो गया था, हमने करवाया था यूजर, बट वो डोमेन दूसरे से जॉइंट हो गया था, वो होना नहीं करना चाहिए हमको। राइट 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 राइट। हमको सो हम या तो अभी जो डोमेन हमारे पास सिंक्रोनाइज हो रहा है मैच ना होने की वजह से, अभी जो हमारे यूजर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं वो मैच ना होने की वजह से, राइट? वो मैच ना होने की वजह से जितने भी यूजर्स हैं वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से जाके जुड़े हुए हैं। क्लियर? सो अल्टरनेट यूपीएन या सफिक्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स काम कैसे करता है। सो इन केस ऑफ अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स एक ऑप्शन होता है ऑन प्रोमाइसेस पे। सो पहले हम क्लाउड पे चलते हैं, लेट मी आइडेंटिफाई द डोमेन नेम दैट वी हैव। सो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने, दिस इज द पैनल ऑफ इंट्रा एडमिन। Under the intra admin, go to the setting, click on domain names. So it will guide you, it will give you the information about the number of domains that you establish. So कितने number of domains हमने यहाँ पे परचेज कर रखे हैं? 2 से 3 डोमेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। cloudsupport.co.in, cloudsupport.co.in, this is our domain, राइट? जो हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है। टीच मी क्लाउड डॉट नेट, ये भी हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है। और क्लाउड कक्षा डॉट इन जो अनवेरीफाइड है, अभी हमने इसको वेरीफाइड नहीं किया। बट ये सारे के सारे डोमेन्स जो हैं, ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो हमारे क्लाउड डोमेन प्रोवाइडर से हमने इसको खरीद रखा है। इनको हमने डोमेन प्रोवाइडर से इनको कॉन्फ़िगर कर परचेज कर रखा है। ऑल राइट, या यस सर। ओके। सो अब ये इनमें से कोई भी डोमेन हमारा ऑन प्रोमाइसेस से मैच नहीं कर रहा है। इनमें से कोई भी डोमेन, राइट? इनमें से कोई भी डोमेन नेम हमारा ऑन प्रोमाइसेस से मैच नहीं कर रहा है।
ऑन प्रोमाइसेस पे जो हमारा डोमेन है वो कौन सा है, विच इज cloud.com। cloud.in। ऑन डॉट प्रोमाइसेस पे डॉट जो को है कि डॉट डोमेन है क्लाउड कोई नहीं है। वो cloud.com के नाम से हमने जोड़ रखा है। एंड क्लाउड अनफॉर्चुनेटली डॉट cloud.com होने की वजह से system.cpl cloud.com की होने की वजह से जितने भी यूजर्स हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट में से जाके जुड़ रहे हैं। एंड वी डिसाइडेड कि हम जितने भी यूजर्स सिंक्रोनाइज करें, जितने भी यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज करें, द यूजर मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द teachmecloud.net या फिर cloudkaksa.in, मतलब जो हमने क्लाउड पर में डोमेन परचेज कर रखा है उन्हीं से जाके जुड़े। क्लियर सर। चलो अब अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स क्या होता है। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, teachmecloud.net, teachmecloud.net उससे हमें एज अल्टरनेट यूपीएन कंसीडर करना पड़ेगा। गो टू द सर्वर मैनेजर विजार्ड, क्लिक टूल्स, और यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन इज को रिलेटेड टू द Active एक्टिव Directory domain डायरेक्टरी and trust। डोमेन एंड ट्रस्ट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में आप ओपन करेंगे और यहाँ पे cloud.com पे जाएंगे। उसके पहले आप देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट दिखाई पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज रिलेटेड टू द अल्टरनेटिव UPS यूपीएन सर। सफिक्स। अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स इन द सेंस कि जो भी आपका क्लाउड पे डोमेन है ना, उस क्लाउड का डोमेन आप इसमें इस्तेमाल करोगे ताकि आप सेम The यूजर name of को the उसी नेम से सिंक्रोनाइज कर सको। the the name of the current domains and the root domains are the different default user principal name UPN suffix. Adding alternative domain name provides that. Okay, yeah, understand sir। So we have to given here like teachmecloud.in one। सो अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स में यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे teachmecloud.net, ठीक है ना, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया teachmecloud.net, और Yes। teachmecloud.net में को हमने कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया। अप्लाई ओके करने के बाद वी जस्ट नीड टू फिक्स इट, और अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स, इन द टूल्स क्लिक active directory user and computers। जस्ट गिव मी 1 मिनट आशीष, 1 मिनट देना। No problem sir।
ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्टरनेट यूपिन सफिक्स तो लगा दिया। अब अल्टरनेट यूपिन सफिक्स लगाने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि व्हाट वी कैन से, इसके बाद हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू बैक टू द यूजर्स पैनल। टाटा और टेलनेट दोनों यूजर्स हैं, आप चाहो तो दोनों को एक साथ ओपन कर लो। अब इनको राइट क्लिक करो हम्म, और गो टू द प्रॉपर्टीज, एक साथ इनकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, एक साथ अकाउंट का सेटिंग आ जाएगा, यूपिन सेटिंग आ जाएगी, तो आप दोनों को एक साथ चेंज कर दो। teachmecloud.net अभी थोड़ी देर पहले हमने अप्लाई किया था, रिमेम्बर? सो वो सेम डोमेन आपका अप्लीकेबल हो गया, सेम डोमेन को आप एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट करने के बाद, अच्छा। हाँ जी हेलो, प्लीज। पहले से कीजिए ना, वो आपका जाम हो गया था तो पता नहीं चला। अल्टरनेट यूपिन सफिक्स की बात ये कर रहे हो? नहीं नहीं, ये ऐसी यूजर का प्रॉपर मेनू, ये कहाँ से आपने ओपन किया, जस्ट वही ओके 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 बता। ओके। सो अभी जो यूजर्स है ना, वो आपका टूल्स पे हम्म, जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी हम्म, यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाने के बाद ये यूजर के हम्म, फोल्डर में है, यूजर का फोल्डर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, दोनों यूजर को आप हम्म, सेलेक्ट कर लो, ओके गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू द ओके। अकाउंट, अंडर द अकाउंट यूपीएन ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा यूपीएन सफिक्स, ओके। है, एंड यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करो, टीच मी क्लाउड डॉट नेट का ऑप्शन आएगा, हम्म, हम्म, एंड देन अप्लाई, एंड देन ओके। ठीक है, ये आपने क्या किया, अल्टरनेट यूपिन सफिक्स को क्या किया, रीसेट किया, यूपीएन अल्टरनेट यूपिन सफिक्स को आपने क्या किया, चेंज किया। अब चेंज करने के बाद या तो आप 30 मिनट तक वेट करो, राइट, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिंक्राइज होता रहता है, ये ऑटोमेटिक हम्म, सिंक्राइज होता रहता है। या तो आप 30 मिनट तक वेट करो, या फिर आपने क्या करना पड़ेगा कि आप मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन कर दो। दोनों यूजर की प्रॉपर्टीज एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सेपरेटली। ये आपका टाटा एट द रेट टीच मी क्लाउड डॉट नेट से जुड़ गया, टेलनेट भी हमारा टीच मी क्लाउड डॉट नेट से जुड़ गया, दोनों यूजर हमने सिंक्रोनाइज कर दिए सक्सेसफुली। और अभी क्या टाइम है, अभी हम क्या करते हैं, अपने इसके डैशबोर्ड पे आते हैं और फिर से उसी को, मींस इस एडी कनेक्ट के पैनल को ओपन करते हैं, हम्म, कॉन्फ़िगर एंड कस्टम सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, नेक्स्ट पे जाएंगे। मैंडेटरी है कि आप पासवर्ड प्रोवाइड करिए, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको प्रोसीड कर दें। कॉन्फ़िगर, डन, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हम्म, प्रोवाइड कर दिया। एंड हम्म, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, we just need to go back to our portal, पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, we just need to wait for few more minutes and refresh the page। यूजर्स के पैनल पे जाकर के इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अभी भी हमारे यूजर्स जो हैं टीच ऑन प्रोमाइसेस, सॉरी, ऑन microsoft.com से जुड़े हुए हैं, and whenever we refresh it we'll get the users information
on the user must be associated with. चलिए आगे है, ये दोनों यूजर्स आपके आगे, राइट? सो अल्टरनेटिव यूपीएन सर्विस का मेन मोटो ये है। हाँ, जब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एवरीथिंग इज ओके, सिंक्रोनाइज काम कर रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है, बट जब आपका यूजर मेल आईडी है ना, वो आपका मैच नहीं करता। और अगर आपकी मेल आईडी मैच नहीं कर रही है, पूरी यूपीएन मैच नहीं कर रहा है, तो आप ईमेल सेंड नहीं कर पाओगे, लाइसेंस आप नहीं देंगे, राइट? So you should know about the concept of the concept of alternate UPN suffix. हमें मालूम होना चाहिए alternate UPN suffix क्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी? नो सर, इट मींस इसको लिख के और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर These all are the really दो important तीन practical, क्योंकि Azure AD को बैकबोन माना जाता है। हाइब्रिड, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो आप हाइब्रिड नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइब्रिड सेटअप बनाएंगे। और हाइब्रिड सेटअप मतलब इस पे ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज लगाएंगे। ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज क्रिएट करने के बाद मेल बॉक्सेस तैयार होगा। मेल बॉक्सेस क्रिएट करने के बाद कुछ यूजर ऑन प्रोमाइसेस से, कुछ यूजर हम क्लाउड से मैनेज करने का काम करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, वो पासवर्ड वाला प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, पर वो मैं अपने खुद से पासवर्ड राइट बैक और पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा वो तो। बाद में नहीं, जो आपने कुछ डाउट होगा देखो, तो मैं पूछूंगा। आपको केवल चेक करना है उसमें, आपको केवल चेक करना है उसमें, चेक इन द सेंस चेक मार्क लगाना है इसको। और चेक मार्क लगाने के बाद आपका ये जो टास्क है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। आप एक बार रीसेट करके देख लेना जरूर क्लाउड से। ओके, या क्लाउड से रीसेट करना, वो पासवर्ड आपका ऑन प्रोमाइसेस पे होना चाहिए। ऑन प्रोमाइसेस से जो पासवर्ड रीसेट करेंगे वो क्लाउड पे सिंक्रोनाइज होना चाहिए। दोनों तरीके का पार्ट है। हाँ, ओके, वैसे वर्सा चेक कर लेने का मींस बोथ अल्टरनेटिव। साइड, या अल्टरनेट बोथ साइड। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड वो ग्रुप राइट बैक का क्या मसला था? ग्रुप राइट बैक का मतलब है कि वो क्लाउड से अगर आपने कोई ग्रुप बनाया और वो ग्रुप आप लोकल डोमेन में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, सो ठीक है? वो भी कस्टम कस्टम में जाके ही वो भी करना पड़ेगा, कस्टम यूजर में जाके ही। हाँ, सेम सेम, जहाँ से कस्टम सॉरी पासवर्ड हैश आपने कॉन्फ़िगर किया, पासवर्ड राइट बैक और कॉन्फ़िगर किया ना, वहीं से हमारा ग्रुप राइट बैक का भी ऑप्शन आएगा। ओके, मैं देख लूंगा वो चीज। ठीक है, सो डू वन थिंग, ये प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हमने वीकडेज में भी 2 क्लासेस शेड्यूल की आपकी, तो एक क्लास कल होगी हमारी, और फिर वीकडेज में हम वेंसडे और थर्सडे को भी एक क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पर हम, वो हाँ, वो 2 क्लास का रिकॉर्डिंग और ये क्लास का रिकॉर्डिंग और वो माल VMware का वो की भेज दीजिए ना मेरे को, तो मैं कर दूंगा आज। मैं आधे घंटे में भेजता हूँ, ठीक है ना, जस्ट हाफ एन हम्म, आवर में भेजता हूँ। हाँ, भूल मत जाना पंसरा, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को क्योंकि पिंग कर देना, एक बार पिंग कर देना, क्योंकि ना अभी वीकेंड है तो मे बी की एक आधी क्लासेस मेरी और है अभी, तो बट एक बार आपने पिंग कर देना, मैं अभी डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिलती है और मंडे आज आप क्लास रखे तो मंडे भी कर, क्यों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंडे बैंक हॉलीडे है मेरी, तो मैं भी छुट्टी हूँ मंडे। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई ऑफ इफ नहीं है, क्योंकि पॉसिबल। ना मंडे को क्या होता है ना, मेरे जो है शिफ्ट जो है रोटेट होती है, नो प्रॉब्लम सर, तो आप जब। मंडे को स्केड्यूल मिलता है मेरा। ओके, नो प्रॉब्लम, सो वेडनेसडे थर्सडे रखेंगे, कोई हम्म, दिक्कत चलो ठीक है ना, नहीं। बाय। कलेक्ट करते हैं ओके, कल, थोड़ा सा पहले कनेक्ट करेंगे हम, और कितने बजे? डिस्कस 5:30 पे, 5:30 पे। नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है ना, बाय। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।